prove that for each n greater or equal to 2, the factorial n plus 1 is greater than 2 की power n. We have to prove this. तो ये सिंपल सा रिजल्ट है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे. ओके, तो वी हैव दिस स्टेटमेंट, दिस n plus 1 factorial is more than 2 की पावर n. where n जो है हमारे पास कहाँ से लिया जा रहा है, दिस इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड व्हेन दिस n इज मोर देन 2 और इक्वल टू 2, है ना, 2 से बड़ा है या फिर 2 के इक्वल है, it means that this inequality is not hold for n is equals to 1. We will see later it also, but हम पहले देख लेते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे. तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन का यूज करेंगे. हमने बताया था कि हम पहले 1 के लिए देखते हैं, फिर k के लिए ज्यूम करते हैं, और फिर हम फर्दर k plus 1 के लिए प्रूव कर देते हैं कि दिस इनइक्वालिटी विल बी होल्ड. ओके, so let us prove it. So right here, proof or solution. Okay, so right here solution. Okay, so let us check it is hold for n is equals to 2 or not. Okay, so let's first of all we let p as a statement, pn, okay, as a statement. Okay, so I'm just taking let pn is the statement, which is what, this statement is what, this is n plus 1 factorial is more than 2 to the power n when this n is greater or equal to 2. Okay, so put n is equals to 2. We can start from 2. तो n बराबर 2 करेंगे तो p2 what, क्या मिलेगा तुम्हें, p2. हम देखते हैं कि ट्रू है या नहीं. तो उसके लिए हम we can see here कि हम यहाँ पर रखेंगे 2 plus 1 factorial, and here we can just write here 2 to the power 2. ओके, तो हम क्लियरली है जो राइट साइड की वैल्यू है दैट इज योर 4, और यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 into 2 is 6, and this is your 4. So clearly this 6 is greater than 4, implies factorial 3 is greater than 4, and implies the factorial of 2 plus 1 is more than 2 की power 2. This implies that this inequality holds when n is equals to 2. पहली चीज हमारे पास प्रूव हुई, तो this implies कि this is hold. So clearly you can say the inequality holds for n is equals to 2. क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने एक देखा है कि this is 2 plus 1 factorial is more than 2 the power 2. तो जो पहला हमारा स्टेप होता है कि जो फर्स्ट उस जहां से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर नेचुरल नंबर्स में, उसके लिए वो चीज ट्रू होनी चाहिए. तो मतलब उसके लिए हमारे पास p2 इज होल्ड्स, या कह सकते हो दिस p2 इज ट्रू, है ना. इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, यू कैन जस्ट राइट हियर p2 is true. True means this holds for n is equals to 2. Okay. अब हम इस इनइक्वालिटी को एज्यूम करते हैं कि इट विल बी ट्रू फॉर सम k which is more than 2 or equal to 2. Okay, so let us assume, let the inequality holds, inequality hold for some natural number k. I'm just taking it k. Okay, this is small k and this is greater or equal to 2. Okay, इसके लिए हम मान लेते हैं. अगर इसके लिए होल्ड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, then we have, it means that this k plus 1 factorial is definitely more than 2 की power k. I'm just taking this as a star.
ठीक है। तो इसका यूज करके अब हम देखेंगे कि इट विल बी आल्सो ट्रू फॉर k प्लस वन, दिस विल बी आल्सो होल्ड फॉर k प्लस वन। ओके, तो this is your k plus 1 now. If I'm just putting here in the place of n k plus 1 in LHS, okay, LHS जो हमने लिया है, LHS में हमने पुट किया क्या, n की जगह पर k plus 1, तो k plus 1 n plus 1, so you got in the LHS this is factorial and that will be equal to k plus 2 factorial. Okay, by putting, by taking this n is just equal to k plus 1. Okay, I'm just taking this k plus 1 because हमको इसको चेक करना है कि this inequality will also hold for k plus 1 whenever this is true for n is equals to k. जब जब ये n equals to k के लिए true होगा तब तब ये k plus 1 के लिए भी true होगा. We have to prove it. Okay, so we have this k plus 2 factorial in LHS, so let us reduce it in the this form which inequality को prove करना है. So this is factorial k plus 2, so you can find it, this is k plus 2 and this is k plus 1 factorial. Since we know that since this is factorial n plus 1, we know that this is equals to n factorial n plus 1 factorial n. इससे हम लोग परिचित हैं कि फैक्टोरियल अगर हमारे पास n plus 1 है तो ये दिस इज n plus 1 बाहर आ सकता है एंड इट विल राइट यू फैक्टोरियल n आल्सो. तो ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल के लिए दो साइन चलता है, एक तो फैक्टोरियल n, दिस इज सेम थिंग लाइक दिस, ये दोनों सेम चीजें हैं, ये नोटेशन दो चलते हैं तुम्हारे पास, एक ये वाला और ये वाला, तो कोई भी हम नोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो फैक्टोरियल दिस इज n plus 1 इज जस्ट राइटिंग लाइक दिस. तो हमारे पास अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो we have this k plus 2 and factorial k plus 1. Okay, अच्छा एक चीज हम पहले ही देख चुके हैं, we assume कर चुके हैं कि factorial k plus 1 is more than 2 की power k, है ना, ये 2 की power k से बड़ा है. तो if in this replacing this in the place of this, एक चीज और ध्यान दीजिएगा क्योंकि k plus 1 is also positive and this 2 की power k is also positive value, तो we can just replace if this in the factorial of k plus 1 की जगह हम क्या लिखते हैं 2 की power k. तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी मोर देन दिस वैल्यू व्हेन यू आर पुटिंग k plus 2, बिकॉज ये हम लेसर वैल्यू यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल k plus 1 की, है ना, यूजिंग दिस लेसर वैल्यू इन द प्लेस ऑफ इट. ओके, तो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर, you can just write here this is k plus 2 and in the place of factorial k plus 2 you can just use this is equals to 2 की पावर k. ठीक है, तो हमने स्मॉलर वैल्यू यूज की है फैक्टोरियल k plus 1 की, सबसे लेस वन, और उससे भी कम वैल्यू यूज की है 2 की पावर k. तो यू विल बी दिस विल बी, ये जो हमारे पास इक्वलिटी है दिस विल बी चेंजिंग in your lesser than, this is greater than, this quantity will be greater than this one. Okay, अच्छा इसको और भी हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हम k plus 2 की जगह पर केवल 2 रख दें बिकॉज हमें 2 से काम चल जाएगा, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो यू कैन जस्ट से दिस इज 2 की पावर k, तो दिस क्वांटिटी दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2 into 2 की पावर k ऑब्वियसली. ओके, तो यू कैन से क्यों, क्योंकि हमारे पास पता है, हमको पहले से ही पता है क्योंकि k इज अ पॉजिटिव नंबर, so this is k plus 2. okay, it's more than 2 obviously बात, k कोई भी नेचुरल नंबर है, तो we if we are adding something natural number in a number, this will give a greater value than previous one. okay, so this you have. okay, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, this is meaning 2 की power k plus 1, है ना. तो clearly you can see कि this factorial factorial k plus 2, है ना, when you putting n is equals to k plus 1 you will get k plus 2 that will be more than 2 की power k plus 1. okay, so this is for n is just equal to
k plus 1. We able to prove that this inequality will hold for k plus 1 as well, है ना? So this shows if the inequality holds for q, अगर ये k के लिए होल्ड करती है तो ये k plus 1 के लिए भी होल्ड करेगी, ठीक है? तो दिस implies inequality holds for n is equals to k plus 1, ठीक? और ये क्या होल्ड करेगी? जब n बराबर k के लिए होल्ड करेगी इनइक्वालिटी। यू कैन से हियर दिस shows that if inequality the inequality holds for k that is your greater or equal to 2, then it also holds for k plus 1. Okay, so clearly by the principle of induction, we can say it will also true for all the natural number more than or equal to 2. Okay, so you can say by the principle of induction, you can say the inequality inequality holds for all natural numbers greater or equal to 2 से हमारे पास बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए या 2 के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अच्छा, यहाँ पर इनइक्वालिटी अगर हम n बराबर 1 की बात करें तो व्हाट वी हैव n plus 1 factorial is greater than 2 की power n when n is greater or equal to 2. This inequality I have. If I'm putting n is equals to 1, let us put n equals to 1. So what you got from here? You got this is 1 plus 1, that is your factorial 1, and here 2 की power 1. So you get this is factorial 2. And what is the value of factorial 2? 2 factorial, and here you got 2, and this is also 2, and this is also 2. And this is equality, not inequality, because here we are saying strictly this n plus 1 factorial is strictly more than 2 to the power n. But here when you put n is equals to 1, you will get equality. This will be equal. So this inequality will not hold. So if you are to the strictly greater than, then you will don't use this n is equals to 1. n equals to 1 हम use नहीं करेंगे. So this is this is the result. You can see clearly कि हमारे पास this will be not hold for when n equals to 1. Okay, so this is the question which is based on the principle of induction. Okay, तो हम इस तरीके से रिजल्ट को प्रूव करते हैं. पहले हम जो हमारे पास फर्स्ट वन होती है वो नेचुरल नंबर, उसके लिए चेक करते हैं, फिर हम उसके k के लिए मान लेते हैं और k plus 1 के लिए प्रूव कर देते हैं. तो वो हमारे पास हर एक नेचुरल नंबर के लिए इनइक्वालिटी होल्ड हो जाती है और प्रूव हो जाता है. ओके, अब हम बात करेंगे द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन. वो भी इंडक्शन का ही एक वर्जन है कह सकते हो, बट उसमें क्या कहा गया है उसको जरा देख लेते हैं. उसमें ये बोला है कि हमारे पास P1 ट्रू होना चाहिए, एंड इफ आर जस्ट k इक्वल्स टू, हम मानते हैं कि k बराबर k के लिए वो ट्रू है, तो हम कहने वाले हैं कि इनके सारे प्रीवियस वैल्यू के लिए ट्रू है. 1 2 3 4 अप टू सारे k के लिए हमने इसको एज्यूम करना है. दिस इज एज्यूम कि द एक्सप्रेशन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द k फ्रॉम 1 to k. ओके, वी हैव एज्यूम्ड, और ये एज्यूम करके अगर हम ये प्रूव करने में सक्षम होते हैं कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर k plus 1 के लिए, इन सब यूज करके, तो अब भी वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होता है. ओके, इट आल्सो इज
ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये भी हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन का वर्जन है, तो इसको भी लिख लेते हैं और अभी हम प्रूव भी करेंगे, है ना, इसके रिजल्ट्स को। तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मली लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो they are not true for n is equals to 1. Since we get equality मिलता है ना। ओके, तो नेक्स्ट second principle of induction, let us write here, then we will go for some questions. Second principle of what, saying the second principle of induction, number one, if let Pn be a statement. Okay, so first we prove P1 is true, है ना, P1 is okay, and secondly if Pn is true for Pn is true for n is equals to 1 2 3 up to k. Okay, then Pn is true for n is equals to k plus 1. It means that whenever it will be true for n is equals to 1 to k, ठीक है, it will be also true for n is equals to k plus 1. और जैसे हम ये प्रूव करने कि it will be true for n k plus 1, we clearly say then this implies Pn will be true for all नेचुरल नंबर्स, ऑल एन, है ना, जो भी जिसके लिए भी एन डिफाइंड होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो हमारे पास फॉर ऑल एन, है ना, जो भी नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। ओके, सो हियर P1 is true for all n k plus 1, so it will be true for all n। लिख भी सकते हैं नेचुरल नंबर, वहां पर कंडीशन दी हुई, जैसे वहां पर n बराबर 1 के लिए ट्रू नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 से बचने के लिए हम ऐसे ही n लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एन। सो पहले वाले जो हमारे पास मेथड था उसमें क्या था कि हम केवल n बराबर k के लिए एज्यूम करते थे, या देयर सम नेचुरल नंबर, उसके लिए वो रिजल्ट ट्रू है, उसके लिए वो फार्मूला ट्रू है, और फिर उसके बाद हम k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते। बट यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो ज्यादा है, हमारे पास हम एज्यूम जो कर रहे हैं वो एजम्पशन हम तो ज्यादा ही एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज आल्सो ट्रू, 1 के लिए तो हमने प्रूव ही कर रखा है, बट इज आल्सो ट्रू फॉर 3k अप टू k के लिए, सारे हमारे नेचुरल नंबर के लिए वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम मान के चल रहे हैं। इस एजम्पशन के साथ हम अपने रिजल्ट को स्मूथली प्रूव कर पाएंगे, जो भी Pn है दैट विल बी ट्रू फॉर k प्लस 1, और जैसे हमने ये प्रूव कर लिया इट विल बी ट्रू फॉर ऑल एन ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसके ऊपर एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और देखेंगे कि कैसे हमारे पास इक्वेशन जो हम लिखने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, बस घुमा फिरा के वो पूछने का तरीका अलग ही होता है क्वेश्चंस के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। बट इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और कह देगा कि दिस एक्सप्रेशन इज द रेशनल नंबर, दिस इज द इरेशनल नंबर, व्हाटएवर दिस इट इज द सम टाइप ऑफ नंबर व्हाटएवर। तो वी हैव टू सी क्लियरली कि वो हमारे पास जो नंबर है वो, क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक नंबर रख के, दो नंबर रख के हम नहीं चेक कर पाएंगे कि वो नंबर कैसी, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपनी प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, देन वी कैन फॉलो इंडक्शन का रूल से हम दिखा पाएंगे दिस विल बी दिस टाइप ऑफ नंबर। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको लिखते हैं, प्रूव दैट
prove that for all n, कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना ले लो, this 3 plus root of 5, 3 plus 3 plus root of 5 की पावर n plus 3 minus root of 5 की पावर n is an even integer, ये एक इवन इंटीजर है। ओके, इवन इंटीजर्स के बारे में जानते ही हो आप लोग। इवन इंटीजर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। नंबर इंटीजर which is divisible by 2, this is known as even integer. Okay, so here is the expression. We clearly know that root 5 is a irrational number. So here the sum of rational and irrational is given, उसकी पावर given है। यहाँ पर 3 minus root of n की पावर n given है। तो whatever the you are choosing n, कुछ भी n ले लेते हैं, 1 2 3 4 कोई भी पावर ले लेते हैं, ये जो नंबर बनेगी that will be सम इवन नंबर, ये कोई इवन नंबर होगी जो 2 से डिविजिबल हुई। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है, इन नंबर को देखना है, इट विल बी इवन फॉर। तो हम जो सेकंड अभी हमने पढ़ा है, जो सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और हम प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो लेट अस सी। तो सॉल्यूशन, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। हमने मान लिया कि हमारे पास Pn क्या है? स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? दैट 3 plus root of 5 की पावर n plus 3 minus root of 5 की पावर n। What is the statement? That is 3 plus root of 5 की पावर n plus 3 minus root of 5 की पावर n is an even एक इवन इंटीजर बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? n is equals to 1 पे चेक करते हैं, है ना? Let us check it's for n is equals to 1। तो पुट n is equals to 1। अच्छा, पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो 3 plus root of 5, इसकी पावर है 1, एंड प्लस दिस इज 3 माइनस रूट ऑफ 5 की पावर n। ऑब्वियसली क्लियरली हम थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 3 plus root of 5 and this is plus 3 minus root of 5, what you got? This is this and this is cancelled, this will be your 6। okay, so we got this is equals to 6, or 6 is a even number, this is a even integer। so clearly you can say it will be true for, so you can say this is P1 is true। ठीक है, क्यों ट्रू है? सिंस यू कैन से हियर क्लियरली, सिंस दिस 3 plus root 5 की पावर 1 and plus this is your 3 minus root 5 की पावर 1 is just equal to 6। okay, एक इवन इंटीजर है एंड इवन इंटीजर। तो 1 के लिए तो ये बात ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर 1। okay, let us assume it will be true for all the integer up to k, है ना? k जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑल द नेचुरल नंबर अप टू k, सभी के लिए ट्रू है, ये मान के चलते हैं। तो लेट अस assume that Pn is true, is true for n is just equal to 1 to up to n, k n नहीं k मान लेते हैं, सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर k, है ना? अप टू k हमने राइट इज ट्रू फॉर ऑल अप टू k। ओके, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? तो it means that what it means that we have this 3 plus root of 5
की पावर k and plus this is 3 minus root 5 power k is an even number. ये हमारे पास है, this is an even number. I am taking this is star. Okay, ताकि हम लिख देंगे, मेंशन कर सकेंगे, it will be true for. तो अब हम चेक करते हैं किसके लिए, ठीक है. Now let us check for n is equals to k plus. तो देखते हैं कि n, जब हम n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखते हैं तो क्या एक इवन नंबर बनती है, उसके लिए देखते हैं. तो लेट अस वी हैव दिस इज 3 प्लस, तो दिस इज योर 3 प्लस रूट ऑफ 5, 3 प्लस रूट ऑफ 5 की पावर k प्लस 1 एंड प्लस दिस इज योर 3 माइनस रूट ऑफ 5 की पावर k प्लस 1. हमने k प्लस 1 ले लिया n की जगह पर. अब ये जो नंबर बनी है व्हेन यू रेज द पावर, रेज द एक्सपोनेंट k प्लस 1, तो दिस इज एन इवन नंबर और नॉट, दिस विल हैव टू यू शो. ओके, तो हियर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज a की पावर k प्लस 1 और प्लस दिस इज b की पावर k प्लस 1. ओके, एंड यहाँ पर हमने जो a है उसको एज्यूम कर लिया है, वेयर दिस a इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 एंड दिस b and this is b is just equal to 3 minus root 5, है ना. तो a जो है वो 3 प्लस रूट 5 है और जो b है दैट इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 हमने एज्यूम कर लिया है थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए. ओके, अब हम इसमें देखिए एक चीज है, जब भी हम कभी किसी भी, ये तो हमारे पास सिंपल सा इंडक्शन मेथड है, जब हमें प्रूव करना हो कोई चीज, कोई भी रिजल्ट, तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से हम अरेंजमेंट करके, किसी तरीके से करके उस चीज को हम दिखा पाए. इसी तरीके से बहुत सारी रिजल्ट्स होते हैं जिनके प्रूफ्स अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मैथमेटिशियन, अलग अलग जो है टीचर्स प्रूफ देते हैं, क्योंकि उनके अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के. तो कोई किसी तरीके से लिखना है, बट हमको उसमें सेटिंग करनी होती है कि हम किस तरीके से इस चीज को दिखा पाए कि दिस इज अगेन इवन इंटीजर, है ना. ओके, सो कंट्रडिक्शन कब होगा, जब हमारे पास कोई एक ऐसी नंबर मिल जाए जिसके लिए इवन ना होता हो, तो उसके लिए वो मतलब हमारे पास इवन नहीं होगा, लेकिन वो ढूंढना भी हमारे पास टफ टास्क होता है. तो हम प्रूव करते हैं अगर, तो प्रूव करने के दौरान वी हैव टू सेट समथिंग. तो हम इस चीज को कैसे सेट करेंगे वो जरा देखिए. तो वी कैन जस्ट पुट हियर a की पावर k प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 है, प्लस b की पावर k प्लस 1 है. वी विल ऐड हेयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम ऐड करेंगे. व्हाट वी विल ये ऐड, वी विल ऐड दिस इज योर a की पावर k b एंड प्लस a की b a b की पावर k. इतना हमने ऐड करना है अपनी तरफ से. तो जब हमने ऐड किया किसी भी नंबर को, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर भी करना होगा. वी विल सब्ट्रैक्ट हियर a की पावर k b एंड प्लस ऑफ a b की पावर k. ओके, ये सब्ट्रैक्ट करा है हमने. तो यू कैन जस्ट सी हियर दिस इज नॉट, दिस विल बी माइनस. ओके, अच्छा ये माइनस हो गया, दिस इज स्क्वायर. तो हम यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करेंगे. वी कैन सी क्लियरली कि इफ वी गो फ्रॉम हेयर दिस एंड दिस, इनको साथ साथ में लिख लेते हैं, थोड़ा सा और दिखने लगेगी, चीजें दिखने लगेंगी. और अभी ये भी पता चल जाएगा कि ये सेटिंग मैंने की क्यों, है ना, क्यों हमने a इंटू बी की पावर के एंड ए की पावर के इंटू बी को ऐड किया. ओके, और ये जो b पावर k वाला है इसको इसके साथ में लिख लो, a b की पावर k. क्लियर, बाकी इसको रहने दो. तो यहाँ पर आप माइनस बाहर ले सकते हो इफ यू वांट, और यहाँ पर आप होता है a की पावर k प्लस 1
दिस इज योर ए, अगर इसमें बाहर ले लेते ए बी तो ए बी कॉमन हो जाएगा, तो एक और ए की पावर के माइनस वन एंड प्लस दिस इज बी की पावर के माइनस वन, और यहाँ से हमने ए बी बाहर लिया, ठीक, डाल दीजिए। इसमें से हम बाहर ले सकते हैं क्या, वी कैन व्हाट वी कैन टेक आउटसाइड, तो यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं ए की पावर की, हम टेकिंग एक और के बाहर लिया तो यहाँ पर ए बच गया और यहाँ पर बी बच गया। यहाँ पर हम बी की पावर के को बाहर ले सकते हैं इन दोनों के अंदर, तो यहाँ पर भी ए बचेगा और यहाँ पर बी बचेगा, तो ए प्लस बी बच जाएगा, एंड माइनस ऑफ दिस इज ए की पावर के माइनस वन एंड प्लस ऑफ बी की पावर के माइनस वन, ओके, इनटू ए बी। अच्छा, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो यू कैन जस्ट राइट हियर ए की पावर के प्लस बी की पावर के, और in other bracket this is your a plus b minus of a की पावर k minus 1 and plus b की पावर k minus 1 into a b. Okay, we have this is your a की पावर k plus b की पावर k into a plus b, and we have a की पावर k minus 1 plus b की पावर k minus 1 into a b. अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, क्लियरली यू विल हैव टू सी, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दिस इज, you know that about a plus b. What is a? A is your 3 plus root 5, or what is b? Is equals to 3 minus root 5. What will be the sum of this a plus? Let us see here. Root of 5 and plus 3 minus root of 6, root of 5, and you cancel out, you get 6. What is the a into b? A into b मतलब 3 plus root 5 into multiplying, this is 3 minus root 5, and you will get this is your 3 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना, फार्मूला होता है, यू हैव दिस इज 9 माइनस का 5 एंड दैट इज इक्वल टू, so it means a into b is 4 and a plus b is 6, so here you can write here this is your 6 times of a की पावर k plus b की पावर k and minus times of 4 of a की पावर k minus 1 and plus b की पावर k minus 1. तो हम पहले से एक चीज पता था कि यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यू कैन जस्ट आल्सो टेक 2 आउटसाइड, यू कैन टेक आउटसाइड 2, और आउटसाइड 2 अगर हम बाहर ले लेते तो 3 टाइम्स अब हो जाएगा a की पावर k प्लस b की पावर k एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a की पावर k माइनस 1 एंड प्लस b की पावर k माइनस 1. ओके, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये पूरा एक्सप्रेशन दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, इट मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब है ये इवन है, इवन होने के लिए, इवन इंटीजर होने के लिए इसका अंदर का इंटीजर होना बहुत जरूरी है, तो वी नो दैट दिस इज ए की पावर के प्लस बी की पावर के, पहले ही एज्यूम्ड है दिस इज सम इवन इंटीजर, दिस इज सम इवन इंटीजर, तो इसको अगर हम 2m कह दें, m मतलब दिस इज मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर, ट्वाइस मल्टीपल, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 2 का मल्टीपल होगा, एंड इट इज आल्सो ट्रू फॉर, you know that this expression is also true for k minus 1, है ना, तो ये इसको हम कह देते हैं this is your 2n, तो clearly you can see here this is 2 into 3 into 2m and minus this is 2 into 2n, and what you got from here, you got this is your 2 times and this is your 6m minus का 4n. Okay, so this is an integer, so this implies that this expression, what expression, a की पावर k plus 1 plus b की पावर k plus 1 is also multiple of 2. It means even. It means even. So this implies a की पावर k plus 1 and plus b की पावर k plus 1 is an even integer. Is
एन इवन इंटीजर। ए और बी यू नो दैट है ना, तो उसका मतलब वही हुआ कि 3 + √5 की पावर k + 1 + 3 -√5 की पावर k + 1 इज इंटीजर। ओके, तो वी हैव बीन प्रूव्ड कि हमारे पास इफ k को n बराबर k के लिए ट्रू है कोई चीज, या n बराबर 1 to k के लिए सारी चीजें ट्रू हैं, तो उस केस में हमारे पास k + 1 के लिए भी ट्रू होगा, और k + 1 के लिए जैसे ही प्रूव हुआ बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन से दिस इज ट्रू फॉर ऑल द n। तो you can say clearly here it is an even integer. It is an even integer since this is a की power k plus b की power k and this is a की power k plus -1 plus b की power k -1 are even integers। are even integer, तो इसका मतलब है कि p of k + 1 is true। Hence you can say this is p of k + 1 is true whenever pk is true। whenever pk is true। true, so this implies this pn is true। pk की जगह पर यहाँ पर pn, क्योंकि हमने सारे इंटीजर्स लिए थे पॉजिटिव इंटीजर 1 to n, तो pn is true for n is equals to 1 to up to k। तो by the second principle of mathematical we can say it is true for all n। ठीक है, तो by the second principle of induction, ठीक है, this pn is true pn is true for all natural numbers। true for all the natural numbers। Okay, so this is the use of your second one also, second जो principle है इंडक्शन के ऊपर। तो उसमें क्या कहता है कि हमारे पास दैट विल बी ट्रू फॉर, अगर हम एज्यूम करते हैं तो एजम्पशन है कि हमारे पास हर एक वन के लिए अप टू के 1 2 3 4 जितनी भी हमारे पास नंबर है उनके लिए वो ट्रू है। तो हम ये उसकी मदद से हम ये प्रूव कर दे इट विल बी ट्रू फॉर k + 1 एज वेल, देन द प्रिंसिपल होल्ड्स, है ना, इंडक्शन के थ्रू वी कैन से दिस pn इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स n। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होंगी। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते रहेंगे चीजों को, और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे। आप जुड़िए, चीजों को सीखिए, और सजेशंस रिकमेंड कोई आपको क्वेरी हो तो यू मे आस्क हियर। थैंक यू सो मच।